Good morning, everyone. My name is Yasmin Gill, and I welcome you all to this discussion session on the Hindu and the Indian Express. So let us begin. Today's topics we'll be covering tribal welfare in detail. What are the issues related to tribes? क्या challenges है and what would be the possible solutions? We'll talk about climate change. इसमें क्या issues हैं and what are the specifics regarding to India? We'll be talking about unionization and workers because of late worker unrest has been in news, inequalities within the southern states, and finally, a very, very important topic, artificial intelligence and mythos. What are the risks which are associated? So let us begin. First of all, see, there was this article in today's Indian Express. State support key for tribal welfare, says Social Justice Ministry report. So Social Justice की ministry ने बोला है कि state support tribal welfare के लिए important है. First of all, it is important to understand what are tribes, why are they important to the country, what are the key issues pertaining to tribes, what are the key schemes that the government is taking up with regard to tribes, right? So ये सब हम discuss कर देते हैं so that we can in a comprehensive manner cover the whole issue. This issue can help you in your GS1 में society वाले portion में specifically and in GS2 with regard to your governance for basically उसमें governance के topic में आपका policies for vulnerable sections है. So there also it will help you. First of all, when you talk about tribes, so roughly 8% of India's population consists of tribal people. लगभग 8.6% आपकी total population का is your tribal population. As far as their concentration is concerned, either they are concentrated in central India part, primarily states of Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, or they are towards the western coast, Gujarat, Maharashtra, right? So in areas में आपके mainly tribals हैं, and even Rajasthan. MP, central part of India. Then we have Odisha, Jharkhand, and Chhattisgarh. Then we have on the western side, we have Gujarat, Maharashtra, and towards northwest, we have Rajasthan state. So the idea is that 2/3 of scheduled tribe population is concentrated in these 7 states. Just give me a second. Hanji, so let us continue. Now the next question which arises is, why are tribal people important? They have a lot of repercussions. Ki tribal people important kyun hai? There are a lot of factors for it. First of all, they help in the forest conservation or forest preservation. Here you can give example of, आपको पता होगा, in the state of Gujarat, there are Gir forests, right? गुजरात में आपके गिर फॉरेस्ट्स हैं. ये जो गिर फॉरेस्ट्स हैं ये इंडिया में एशियाटिक लाइन का ओनली सर्वाइविंग हैबिटेट है. दिस इज द ओनली प्लेस वेयर एशियाटिक लाइन कैन सर्वाइव. यहाँ पे देयर इज अ ट्राइब बाय द नेम ऑफ मालधारीज. ये जो मालधारी ट्राइब है दिस coexist with these Asiatic lions and they actually help in the preservation of these Asiatic lions. So forest की preservation, forest के resources की preservation, उनको sustainable तरीके से use करना. When we talk about sustainable use, it means to use a resource in a manner that we have sufficient resource left for the forthcoming generations as well. So यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो forest cover को preserve रखने में and even animals की preservation में ये काफी ज्यादा role play करते हैं. For example, there is this idea of sacred groves. Sacred groves क्या है? They are more important in southern India and northeast India. वैसे इसकी presence काफी और states में भी है. What are sacred groves? Local कोई ना deity. For example, south में, let us say there is a patch of forest or there is a small pond, right? So there will be a local deity which is attached to that particular pond or attached to that particular patch of forest. Because that area is so respected in a religious manner, therefore, people there or the tribal people who are staying there do not damage that particular area. In fact, ना अगर काफी ऐसे सेक्रेट ग्रूव्स हैं जहां पे लोग एक लीफ भी नहीं तोड़ते हैं जस्ट बिकॉज वहां के लोकल डीटी को वो रिस्पेक्ट करते हैं. इस तरह से हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है वो और ज्यादा बेटर हो जाता है. दिस इज बेसिकली अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रिलीजन विद एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. रिलीजन से आपके एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन काफी ज्यादा हो भी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी टेम्पल्स इन साउथ इंडिया विच हैव टैंक्स विद इन देम, तो वो भी एक प्रिजर्वेशन का मेथड है. इवन इन नॉर्थ इंडिया, इफ यू लुक टुवर्ड्स गुजरात, there are certain temples जहां पे temples के within ही इस तरह के step wells बने हुए हैं which are in local parlance known as बाउलीज. इनको ना local language में बोला जाता है बाउलीज.
often found within the temple premises, usually in case of Gujarat, Rajasthan, because these areas are arid areas, right? So यहाँ पे आपकी preservation पानी की और ज़्यादा important हो जाती है. So एक तो हो गया आपका sacred groves. इसके बाद slash and burn. What is slash and burn? This is a technique followed by tribal people whereby they cultivate a particular area. After that, जब वो उसे harvest कर लेंगे, then they burn that particular area and go to a new patch. इस पैच को दे विल लीव इट फैलो यानी कि कुछ टाइम के लिए वो इस पैच पे कुछ और ग्रो नहीं करेंगे, किसी नए पैच पे जाएंगे. आफ्टर फ्यू इयर्स दे विल कम बैक टू दिस पैच. इससे क्या होगा? दिस इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, राइट? सो इससे क्या होगा कि आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको, क्योंकि हमने सॉइल को या लैंड को कुछ टाइम के लिए खाली रखा है, देयरफॉर फर्टिलिटी आपकी रिस्टोर हो जाती है. ठीक है. देन इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेशनल पार्क्स है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. सिमिलरली गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? इट हैज कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व्स. कम्युनिटी रिजर्व्स क्या है? कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से, कम्युनिटी की आपके बोलने से कि हाँ हमें ये एरिया को प्रिजर्व करना है ना, तो दैट पर्टिकुलर एरिया इज प्रिजर्व्ड बाय द लोकल कम्युनिटी प्रैक्टिसेस. तो इसमें आपकी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहती है. If you have to put up a new project or something in these areas, then you have to take the consent of the community. Only then you can come up with a new project. ठीक है. So ये जो community reserves हैं, इसमें भी आपके tribal people they contribute a lot in local preservation. तो ये सारे आपके examples हैं forest preservation के. Why? Because 60% of the forest cover is located in tribal districts like मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा. जहां पे ट्राइब्स हैं वो अक्सर एरियाज ऐसे हैं जो कि जहां पे डेंस फॉरेस्ट है इंडिया के, जहां पे इंडिया का मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर भी है. देयरफॉर चाहे वो एनिमल प्रेजर्वेशन हो, फॉर एग्जांपल मालधारी ट्राइब इन केस ऑफ गिर फॉरेस्ट, या फिर इन जनरल फॉरेस्ट की प्रेजर्वेशन हो, ट्राइबल्स का काफी ज्यादा रोल रहता है. आगे अगर हम देखें, द नेक्स्ट benefit that tribes give to our country is they help in strengthening the agriculture diversity. आपने ये टर्म काफी सुनी होगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? या फिर एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी, कि रादर देन ग्रोइंग particular type of one or two crops, we actually grow a lot of different varieties of crops. ये चीज ट्राइबल एरियाज के लिए काफी ज्यादा वैलिड होती है. इनफैक्ट हमने कुछ दिन पहले भी वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. व्हाट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट से ये लोग हनी की कलेक्शन करते हैं, फॉरेस्ट से ये लोग यहाँ पे सल ट्रीज काफी ज्यादा होती हैं, खास करके आपके सेंट्रल इंडिया में. सो सल ट्रीज को तोड़ के दे एक्चुअली वीव बास्केट्स ऑफ इट. ठीक है. सिमिलरली लैक एक तरह का रेसिन होता है, एक स्टिकी सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस. दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैंगल्स. देन वी हैव तेंदू लीव्स, दिस इज यूज्ड इन रोलिंग बीडीज. सो दीज आर सर्टन आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो कि नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है, जिसको ट्राइबल पीपल कलेक्ट करके इससे सर्टन प्रोडक्ट्स बना के या प्रोसेस करके इसको सेल करके दे अर्न इनकम आउट ऑफ इट. ठीक है. तो ये भी आपकी एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, कि ऐसा नहीं होगा कि ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ही ग्रो हो रही हैं. वी हैव मल्टीपल वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल आपकी जो क्रॉप्स हैं वो भी यहाँ पे ग्रो होती हैं. देन ट्राइफेड. What is TriFed? Tribal Federation. Tribal Federation helps in the socio-economic development and upliftment of tribes. How? They ensure कि ये जो minor forest produce है ये आपका सही वैल्यू पे सेल हो. एट द सेम टाइम ट्राइफेड के ना इंडिया में स्टोर्स भी होते हैं बाय द नेम ऑफ ट्राइब्स इंडिया. They are important for selling tribal costumes, important for selling tribal jewelry, etc. Third, ट्राइब्स आर नोन फॉर देयर ओन आर्ट एंड कल्चर. इनके अपने फोकलोर्स हैं, इनके अपनी माइथोलॉजी है, इनकी अपनी पेंटिंग स्टाइल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट वर्ली पेंटिंग्स. वर्ली पेंटिंग्स आपकी महाराष्ट्र में होती है. सो इट्स अ वेरी बेसिक पेंटिंग, बिल्कुल बेसिक कलर से ज्योमेट्रिक शेप्स को ड्रॉ किया जाता है. सो इस तरह के आर्ट एंड कल्चर को भी ट्राइब्स प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, tribes help to be custodians of Indian traditional knowledge system. ये word बहुत important है, Indian traditional knowledge system. See, एक तो हमारा जो medicinal herbs है, फॉर एग्जाम्पल नीम हो गया, तुलसी हो गया, है ना, इनका यूसेज लोकल आपकी नॉर्मल डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए. नॉट जस्ट दैट, अगर आप हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, एक तो आपका एलोपैथी है, राइट,
parallel to that, we also have a traditional medicine system by the name of आयुष. ये आयुष क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, ये सारे मेडिसिन सिस्टम्स के नाम हैं. सम ऑफ देम है फॉरेन ओरिजिन और कुछ इंडिजिनस हैं. जैसे आयुर्वेद है, इसमें भी हर्ब्स का यूज होता है. देन वी हैव यूनानी, यूनानी एक ग्रीक मेडिसिन सिस्टम है. सिद्धा, ये साउथ में तमिलनाडु में बहुत फेमस है. देन वी हैव होम्योपैथी. यहाँ पे आपके हर्ब्स वगैरह का काफी यूज होता है. इसको प्रिजर्व करने के लिए, इस मेडिसिनल सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए भी ट्राइब्स अपनी नॉलेज को कंट्रीब्यूट करते हैं. इंटरेस्टिंगली सी, ट्राइब्स कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट वेदर. ट्राइब्स वेदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन वॉचिंग एनिमल बिहेवियर, बेस्ड ऑन वॉचिंग फ्लावरिंग का बिहेवियर कि कौन सा प्लांट कब फ्लावर कर रहा है, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ, बेस्ड ऑन सीइंग द एंट्स, हमारे जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं. सो ये सब उनका एक, बिकॉज वो लाइफ दर लाइफ ये करते आ रहे हैं, राइट. सो ये सब ट्राइब्स की इंपॉर्टेंस को हमें समझाता है. नंबर 1, दे हेल्प इन कंजर्विंग फॉरेस्ट, help in preserving agriculture biodiversity. Third, they have their own culture. And fourth, they are the custodian of Indian traditional knowledge system. So इस तरह से अगर आप लिखोगे, आप different points को touch कर दोगे. You'll be covering culture, you'll be covering environmental portion, ठीक है. Then आपका economy भी आ गया. नेक्स्ट, व्हाट आर द की इश्यूज जो ट्राइबल फेस करते हैं. सबसे पहले अगर आप देखोगे, वी हैव सोशल इश्यूज. सोशल इश्यूज में वी हैव प्राइमरली हेल्थ एंड एजुकेशन. इफ यू लुक एट हेल्थ, इनका जो लिटरेसी लेवल है दैट इज लेसर एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज. फॉर एग्जाम्पल, इनकी जो लिटरेसी रेट है दैट इज 58%, वाइल नेशनल लेवल पे लिटरेसी समवॉट नियर 70% है. तो इनका एक तो लिटरेसी लेवल, स्कूल्स नहीं है यहाँ पे, अगर स्कूल्स हैं भी तो वो लोकल ट्राइबल लैंग्वेजेस में एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है. सो ये कुछ इश्यूज हैं. देन हेल्थ, ट्राइब्स के अपने हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं. यहाँ पे ना कुछ डिसीजेस आर मोर प्रेवलेंट एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, सिकल सेल अनीमिया. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अनीमिया. अनीमिया में हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन से रिलेटेड आयरन की कमी हो जाती है. सो सिकल सेल अनीमिया एक स्पेसिफिक डिसीज है जो कि आपके इन एरियाज में काफी ज्यादा प्रेवलेंट होती है. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई. सी, ऐसा नहीं है कि ट्राइब्स जहां पे भी होंगे वहां पे सिकल सेल अनीमिया होगा, नहीं. दैट इज नॉट द सिनेरियो. आइडिया ये है, व्हाट इज सिकल सेल अनीमिया. हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, राइट, जो हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शनल एलिमेंट है. जीन्स हमारी हेरिडिटी को कैरी करते हैं. सो ये जो जीन्स हैं ये ट्राइबल पीपल में भी होते हैं. नाउ दे, एक पर्टिकुलर जीन होता है जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल जीन. ये जो सिकल सेल जीन है ये नॉर्मली पॉपुलेशंस में पाया जाता है. एंड इन केस ऑफ ट्राइब्स ये वहां पे मलेरिया के प्रिवेंशन में हेल्प करता है. ये जो सिकल सेल जीन है ये आपको नॉर्मली मलेरिया की प्रेजर्वेशन में हेल्प करता है. बट व्हाट डू ट्राइब्स डू? दे डू नॉट यूजुअली मैरी आउटसाइड द ट्राइब्स, राइट. सो इनकी मैरिजेस भी इन्हीं के यूनिट्स में ही होती है, ड्यू टू विच over a period of time their offsprings have a greater chance of having this particular sickle cell gene from both the parents, ठीक है. तो over a period of time क्या होगा कि इनके, क्योंकि आपस में ही मैरिज करी जा रहे हैं, तो मदर एंड फादर दोनों में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सिकल सेल जीन होने की, बच्चे में भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो नॉर्मली हमें मलेरिया से बचाता था जीन, अब वो ही एक नई डिसीज कॉज करेगा, सिकल सेल अनीमिया. और ये क्यों होगा? We have red blood cells in our body. ये रेड ब्लड सेल्स यूजुअली सर्कुलर होते हैं, बट जब सिकल सेल अनीमिया होता है तब ये सेल्स आपके कुछ इस तरह के हो जाते हैं, एक सिक्कल की शेप के हो जाते हैं. सिक्कल इज अ टूल बेसिकली. तो उस शेप के हो जाते हैं जिसकी वजह से देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस, लीडिंग टू सिकल सेल अनीमिया. तो ट्राइबल्स के अपने हेल्थ चैलेंजेस हैं. सिमिलरली अंडर 5 चिल्ड्रन में 30% ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन सफर विद अंडर न्यूट्रिशन. इनकी न्यूट्रिशनल नीड्स नहीं पूरी हो पाती हैं, ठीक है. सो ये एक कारण है. देन नेक्स्ट, अब हमने सोशल इश्यूज कवर कर लिया, हेल्थ एंड एजुकेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट आपका इकोनॉमिक इशू. इकोनॉमिक में मेन इशू दैट दे सफर इज लैंड एलियनेशन. ये क्या है? 2006 में गवर्नमेंट केम अप विद एन एक्ट नोन एज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. This particular act is also known as
शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। इसी एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। अब ये जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनके यूजुअली लैंड पे जो क्लेम्स हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जो क्लेम्स हैं, वो अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। व्हाट इज ये क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? बिकॉज देयर इज अ कंडीशन कि आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है कि आप और आपसे पहली वाली जनरेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 75 years, which is approximately 3 generations, have been dependent on forest, have been staying here. तो ये पर्टिकुलर एक्ट कहता है कि 75 साल की डिपेंडेंस दिखानी है अब आपने फॉरेस्ट पे किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के थ्रू, कि आपके लेटर से कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी इस एरिया में रहते रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी इस एरिया में रहते रहे हैं, आप खुद भी इस एरिया पे डिपेंडेंट रहे हो। ठीक है, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनका राइट रिकॉग्नाइज होगा यहाँ रहने का भी, हैबिटेशन राइट्स भी, यहाँ से फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने का भी, एंड उससे इनकम अर्न करने का भी। बिकॉज they do not have sufficient documents for it, over 50% of claims they get rejected. So यहाँ से land alienation का issue arise होता है। Next, developmental policies. In a few lectures back, we talked about that the idea of their development and the idea of national development, they are a contradictory version sometimes. Why? Because see, इनका जो development का idea, that is very much to be in coexistence with nature, to be in coexistence with forests. जो हमारी गवर्नमेंट का यूजुअली डेवलपमेंट का आइडिया होता है वो होता है माइनिंग प्रोजेक्ट्स लगाने, है ना, देन आपका डैम्स बिल्ड करने, ड्यू टू विच ट्राइबल्स को डिस्प्लेस होना पड़ता है, दे डू नॉट गेट एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन। इस वजह से आपका डेवलपमेंट के आइडिया में भी कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका एग्जाम्पल, देयर वाज अ साउथ कोरियन कंपनी, इट वाज अ स्टील कंपनी जिसका नाम था पॉक्सो। दे वांटेड टू सेट अप अ प्लांट इन ओडिशा। तो ओडिशा में किसी भी अगर आपको नई जगह पे प्लांट लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, कि जी हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने से इस एरिया की सोसाइटी को, यहाँ के कल्चर को क्या फायदे नुकसान होंगे, ये चीज। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यहाँ की एनवायरमेंट को क्या फायदा नुकसान होगा। एंड इवन in case of tribal areas they have to take consent of ग्राम सभा, जो लोकल आपकी पॉलिटिकल लेवल पे बॉडी है, डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी है ग्राम सभा, उसकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये सब नहीं हो पाया पॉक्सो के केस में, therefore they had to shelve this particular project and this company had to drop the idea of building a steel project in Odisha. ये एक एग्जांपल है। सिमिलरली नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा कहाँ पे है? इट इज ऑलमोस्ट ऑन द जंक्शन ऑफ योर मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, राइट। यहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर है, यहाँ पे गुजरात है, here we have राजस्थान, राइट, here we have MP. इन एरियाज में there was this project by the name of सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट। अब ये डैम है एंड इंटरेस्टिंगली सी इंडिया वो कंट्री है जहां पे 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम्स हैं आफ्टर चाइना एंड यूएस। देर आर मेनी एनवायरमेंटलिस्ट जो बोलते हैं हमें इतने लार्ज डैम्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ना वो बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए, जिसमें फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर जैसे हिली एरियाज में आप डायरेक्टली पानी को छोड़ सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू स्टोर इट इन अ डैम। जब हम डैम बनाते हैं काफी विलेजेस की सबमर्जेंस होती है, अगर वहां पे कोई फॉरेस्टेड एरिया है दैट आल्सो गेट सबमर्ज्ड लीडिंग टू डेथ ऑफ एनिमल्स। तो ये जो सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट है इसके कारण भी काफी विलेजेस की आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई। दो दिस प्रोजेक्ट हैज बीन क्लियर्ड एंड जो हमारी रीसेटलमेंट पॉलिसीज हैं, जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज हैं, अंडर दैट दे आर गिवन ड्यू कॉम्पेंसेशन एंड ऑल, बट स्टिल देयर आर इश्यूज, ठीक है। तो एक तो हो गया, अगला इशू ट्राइबल्स में है डेवलपमेंट का इशू। देन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का भी इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज है। क्लाइमेट चेंज के कारण वार्मिंग होगी, वार्मिंग से आपका पेस्ट्स का राइज बढ़ेगा, मलेरियल डिसीजेस का राइज बढ़ेगा, ठीक है। सो दीज आर इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। लास्टली लिंग्विस्टिक मार्जिनलाइजेशन, ट्राइबल्स की जो अपनी लैंग्वेजेस हैं वो बिकॉज इंग्लिश हैज बिकम अ लैंग्वेज ऑफ जॉब्स,
अगर आपको जॉब्स चाहिए तो यू नीड इंग्लिश, राइट? सो बिकॉज इंग्लिश हैज बिकम लैंग्वेज ऑफ जॉब्स, तो जो इनकी लोकल लैंग्वेजेस हैं वो खत्म होती जा रही है, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. लास्ट ईयर आपको पता होगा हु इज आवर प्रेसिडेंट? आवर प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू. सो ये जो मुर्मू सरनेम है, दिस इज रिलेटेड टू झारखंड छत्तीसगढ़ वाले एरिया. उनकी दे हैव अ लैंग्वेज बाय द नेम ऑफ संथली. Last year, Indian Constitution was translated into Santhali language to enable कि इन लोगों को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की समझ हो, इसीलिए इनकी भी लैंग्वेज में हम कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट करें. सो लिंग्विस्टिक मार्जिनलाइजेशन का भी बहुत बड़ा इशू है. फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मेघालय में देयर इज अ विलेज जहां पे विस्लिंग लैंग्वेज यूज होती है. विसल करके म्यूजिकल फॉर्म में, ट्यून्स की फॉर्म में दे ट्राई टू टॉक टू ईच अदर. सो ये जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्राइब्स के, दीज ऑल्सो टेंड टू be at the threat of extinction due to coming of western languages and predominance of certain other languages in the country. तो ये कुछ issues है. health हो गया, education हो गया, economics में आपका land alienation हो गया, you can talk about other traditional forest dwellers यहाँ पे. then developmental policies का impact, for example mining projects, for example dams, then climate change का impact, and finally इनकी culture को loss by way of linguistic marginalization. एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे और है, विच इज ट्राइबल यूथ अपनी जो है, दे आर ट्राइंग टू रीअसर्ट देयर आइडेंटिटी. जो ट्राइबल यूथ है, दे आर नो लॉन्गर अशेम्ड ऑफ देयर आइडेंटिटी, विच इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. तो डिजिटलाइजेशन के इन्फ्लुएंस से, है ना, दे एक्चुअली सेलिब्रेट देयर आइडेंटिटी, सेलिब्रेट देयर ओन कॉस्ट्यूम, सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स. तो ये एक वेलकम चेंज है विच इज कमिंग अप. Next, what are the key schemes or the key legal measures that the government has taken to help the tribes? First is Forest Rights Act. Forest Rights Act ने ब्रिटिशर्स के काफी लंबे टाइम का जो ट्राइबल निग्लेक्ट था, इवन जो इंडियन गवर्नमेंट का भी काफी लंबे टाइम तक ट्राइबल निग्लेक्ट था, उसको ठीक किया. क्योंकि आप देखो ना, दिस एक्ट केम रफली इन 2005-2006 एंड हम तो 1947 में ही इंडिपेंडेंट हो गए थे, राइट? सो इतने लंबे टाइम तक जो गवर्नमेंट का भी निग्लेक्ट रहा टुवर्ड्स ट्राइबल, उसको इस एक्ट ने ठीक करा. उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को इस एक्ट ने ठीक करा बाय रिकॉग्नाइजिंग कि इंडिविजुअल राइट्स भी होंगे, आपको यहाँ रहने का, हैबिटेशन का राइट भी होगा, कलेक्टिव राइट्स भी होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करने का राइट होगा, उससे आपको अपना लाइवलीहुड अर्न करने का राइट होगा, ठीक है. देन पीसा एक्ट. पीसा इज आपका शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायत की एक्सटेंशन ऑफ पंचायत टू द शेड्यूल्ड एरियाज. ट्राइबल एरियाज में बिकॉज लोकल लैंड उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इनकी लाइवलीहुड इतनी ज्यादा लैंड से जुड़ी हुई है, देयरफॉर कुछ भी अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, कोई नई माइनिंग लीज लेनी है, ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, लैंड एक्वायर करना है, यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा कंपल्सरली. तो ये आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के तहत एक प्रोविजन है. तो ये दोनों एक्ट्स हो गए. कुछ स्कीम्स हैं विच गवर्नमेंट हैज कम अप विद. फॉर एग्जांपल पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. व्हाट इज द स्कीम फॉर? हमारे ना ट्राइब्स के अंदर ही देयर आर 75 PVTGs. What are PVTGs? Particularly vulnerable tribal groups. ट्राइब्स के विद इन ही कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके लिटरेसी रेट्स, हेल्थ पैरामीटर्स, एजुकेशन पैरामीटर्स, लैंग्वेज काफी ज्यादा रिस्क पे है. तो इस वजह से इनको स्टेटस दिया गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का, कि ये ऐसे ट्राइब्स हैं जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं. फॉर एग्जांपल सर्टेन ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्सेट्रा. तो इनके लिए ये स्कीम है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जहां पे इनकी नीड्स को टेक केयर किया जाता है. देन वी हैव धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. हु इज धरती आबा? धरती आबा यानी कि आपका फादर ऑफ अर्थ, राइट? सो दिस इज अ टाइटल विच वाज गिवन टू बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में ट्राइब्स का केस लेके लड़ने वाले वन ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे. उनके नाम पे ये स्कीम है एंड दिस बेसिकली एम्स एट प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द ट्राइबल एरियाज. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये आपके एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. व्हाई इज इट नोन एज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल? सी, महाभारत में एक कैरेक्टर थे एकलव्य. He used to worship
गुरु द्रोणाचार्य एज इज गुरु, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया. वाई? बिकॉज ही वॉज ऑफ ट्राइबल बैकग्राउंड, वो एक क्षत्रिय नहीं थे. ड्यू टू दिस ही एक्चुअली स्टार्टेड टू प्रे टू गुरु द्रोणाचार्य. उन्होंने अलग से उनका एक स्टैचू बना लिया एंड ही लर्नड आर्चरी बाय हिमसेल्फ. उनके नाम पे यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं टू प्रोवाइड एजुकेशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया. देन है वंदन विकास योजना, वेरी इंपॉर्टेंट. वंदन विकास योजना के अंडर वंदन विकास केंद्र सेटअप किए जाते हैं, वेयर बाय ट्राइब्स कैन कम एंड सेल देयर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. अक्सर इसमें क्या होता है, जो वुमेन है उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिसको आप अपनी गवर्नेंस में और अच्छे से पढ़ोगे. इन ग्रुप्स को बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 वुमेन का एक ग्रुप बना दिया. ये वुमेन का भी हो सकता है, मेन का भी हो सकता है, बट ये वुमेन की पार्टिसिपेशन और उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है. तो ये जो वुमेन का ग्रुप बना दिया, दे विल सॉर्ट ऑफ प्रोसेस सर्टेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस. पिकल्स बना दिए, जैम्स बना दी, बास्केट्स बना दी, हैंडीक्राफ्ट्स बना दिए. तो ये सब ये वंदन विकास केंद्र पे जाके आपका सेल कर सकते हैं. देयरफॉर दिस पर्टिकुलर योजना हैज कम अप. इट हेल्प्स इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में. आदि कर्म योगी अभियान. आदि कर्म योगी अभियान इज बेसिकली टू इंश्योर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. आपकी जो ट्राइबल लेवल पे लीडरशिप है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए. इस वजह से आपका ये पर्टिकुलर आदि कर्म योगी अभियान है. सो ये आप देख रहे हो, इट्स अ वेरी कि इसमें आपका कल्चरल एलिमेंट भी कवर हो गया. स्कूल्स के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है. इकोनॉमिक्स के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के केंद्र बना दिए. देन वी हैव जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उनके लिए अलग स्कीम है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए अलग स्कीम है. तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि इनका लाइवलीहुड के लिए अलग स्कीम है कि डिफरेंट एंगल से ट्राइबल पीपल की हेल्प हो जाए. फाइनली एक और चीज जो वी हैव टू लर्न अबाउट इट इन ट्राइब्स इज डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स. डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स आल्सो नोन एज DNTs. What are these? या who are these? देखो, when Britishers came to India, they were usually familiar with a very let us say कि they were very familiar with a sedentary lifestyle. ठीक है, कि जी एक जगह पे रह के आप रहते हो, that is what they were familiar with. When they came here, they saw these tribes doing shifting cultivation, moving here and around the country. उनको लगता था कि ये लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, shifting cultivation करते रहते हैं. And due to certain other reasons as well, they came up with an act known as क्रिमिनल राइट्स एक्ट, क्रिमिनल एक्ट. ठीक है, तो ये आपका 1871 में ना एक एक्ट लेके आए जिसके तहत सर्टन ट्राइब्स दे वर थॉट टू बी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू कमिट क्राइम्स. यानी कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो इनकी तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि दे विल कमिट क्राइम्स. देयरफॉर टाइम टू टाइम इनको जेल आके अपना चेकअप्स कराने पड़ते थे. ठीक है, दे हैड टू चेक इन विद द जेल्स. इनको अरेस्ट भी कर लिए जाते थे इनके. ठीक है, सो ये सब आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंट, वी एक्चुअली डीनोटिफाइड देम कि ये क्रिमिनल्स नहीं है. देयरफॉर इनको हम बोलते हैं डीनोटिफाइड ट्राइब्स बिकॉज दे आर नो लॉन्गर नोटिफाइड एज क्रिमिनल्स. ठीक है, सो यूजुअली 10% ऑफ हमारी पॉपुलेशन जो वो डीनोटिफाइड ट्राइब्स में है. एंड इनके लिए एक अलग से गवर्नमेंट ने कमीशन सेटअप किया है बाय द नेम ऑफ नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स. इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए देयर इज अ सेपरेट स्कीम नोन एज सीड स्कीम, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स. इशू क्या है? यूजुअली दे आर क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट ये शेड्यूल्ड ट्राइब से डिफरेंट है. इनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, इनके प्रोविजंस, इनकी जो बेनिफिट्स हैं दे आर डिफरेंट. तो कभी कभार इनको जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट मिलना होता है कि दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी वॉज अ नोटिफाइड कम्युनिटी अर्लियर और अभी ये डीनोटिफाइड है, तो वो कभी कभार सर्टिफिकेट्स मिलने में दिक्कत हो जाती है. यूजुअली वो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब का सर्टिफिकेट दे देते हैं रादर दैन डीनोटिफाइड ट्राइब का. सो ये वाला भी एक इशू है ट्राइबल पीपल में. अब वी कैन जस्ट गो थ्रू सर्टन यूपीएससी PYQs. ये आपके मेंस के हैं. देयर वाज अ क्वेश्चन, examine the uniqueness of tribal knowledge system when compared with mainstream knowledge and cultural system. ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि मेनस्ट्रीम कल्चरल नॉलेज और ट्राइबल जो कम्युनिटी नॉलेज है, ट्राइबल जो इंडिजिनस नॉलेज है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन देम
एंड व्हाट इज द यूनिकनेस, जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है उनकी यूनिकनेस क्या है, ठीक है। सो हमने इस चीज के बारे में बात की हुई है। यू कैन टॉक अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स, यू कैन टॉक अबाउट वेदर प्रेडिक्शन पैटर्न्स, ठीक है। तो हाउसिंग पैटर्न्स काफी वेदर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, तो ये सब चीजों का ट्राइबल को नॉलेज है। What are the two major legal initiatives by the state since independence addressing the discrimination against scheduled tribes? ऐसे कौन से दो legal initiatives हैं scheduled tribes के upliftment के लिए? So you can talk about Forest Rights Act, ये एक legal है, ठीक है, act है, 2005 या 6 में बना था. Then you can talk about एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक है, दिस इज आई थिंक अराउंड 1996. सो ये कुछ आपके लीगल मेजर्स हैं एंड आप इसको थोड़ी थोड़ी लाइन में इलाबोरेट कर सकते हो, विच द गवर्नमेंट हैज टेकन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. देयर वाज दिस प्रीलिम्स क्वेश्चन, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights? आपके जो ये पर्टिकुलर एक्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इस एक्ट के तहत जब भी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज करना होगा, हु विल बी द अथॉरिटी जो ये डिसाइड करेगी कि फॉरेस्ट राइट्स रिकॉग्नाइज होते हैं या नहीं होते? सो यहाँ पे ग्राम सभा वाज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस. सो करेक्ट ऑप्शन आपका ग्राम सभा है, ठीक है. सो दिस वी हैव कवर्ड tribes in a very comprehensive manner. We have talked about what are the issues that they face, what are the schemes as well as acts by the government. We have talked about denotified tribes and we have also talked about कि tribes की relevance क्या है, इनकी importance क्या है. Moving forward, there was this article, scaling climate adaptation from policy to grassroots. So because इसमें climate की बात हो रही थी, तो I just thought कि it would be wiser कि आपको एक climate का सारी हमारी जो जर्नी रही है climate change की या climate को ठीक करने की, उसके बारे में बात कर लें. First of all, see, we will talk about what is climate change. When we talk about climate change दो कारण की वजह से, सबसे पहले what is climate है ना, उसके बाद ही climate change की बात करेंगे. तो एक चीज है weather, दूसरी टर्म है क्लाइमेट. What is the difference between them? Weather is very short term in nature. You could be saying today morning it was very cold, today afternoon it is very hot, right? Today it's a rainy day. या कुछ दिनों के लिए का पीरियड भी हो सकता है. तो ये जो शॉर्ट टर्म है, this is weather. As far as climate is concerned, we take a very long term view. Usually it is 30+ years का हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे ट्रेंड रहा है, and then we classify कि इस रीजन का ये पर्टिकुलर क्लाइमेट टाइप है. तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि आज सुबह मौसम कुछ और था एंड शाम को कुछ और, सो वी विल से कि क्लाइमेट चेंज हो गया, नहीं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम देखते हैं कि क्लाइमेट में सब्सटैंशियल चेंजेस आ रहे हैं, आइस मेल्ट हो रही है, रिवर्स का या सीज का सी लेवल बढ़ रहा है, देन वी विल से कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है. तो ये तो हो गया क्लाइमेट चेंज. व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? क्लाइमेट चेंज कैन हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन रीजंस एज वेल एंड इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस एज वेल. नेचुरल रीजन से कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन से एक बार जो इनसे एरोसोल्स, एक सब्सटेंस है एरोसोल्स एमिट होते हैं जिससे एकदम से कूलिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो भी एक टाइप है, ठीक है. तो कि नेचुरल चीजों से भी होता है आपका क्लाइमेट चेंज. बट जब हम क्लाइमेट चेंज की यूजुअली न्यूज़पेपर्स में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लेड क्लाइमेट चेंज विच इज रेफर टू एज एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, कि ह्यूमंस ने क्लाइमेट को कैसे चेंज किया है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द मेजर कॉजेस? ऐसे तो एंडलेस कॉजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, बट जो मेजर कॉजेज हैं वो दो लेवल पे हैं. फर्स्ट इज इंक्रीजिंग फॉसिल फ्यूल्स, चाहे वो पेट्रोल है, कोल है, इन सब चीजों का यूसेज ज्यादा बढ़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सेट्रा. इससे हो ये रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स एमिट करते हैं गैसेस विच आर नोन एज greenhouse gases. Now why are they known as greenhouse gases? हमारा जो अर्थ है इसमें नेचुरली एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये इफेक्ट क्या है? दिस इज आवर अर्थ, राइट. इस पे जब हमारी सन की रेडिएशन आती है तो यहाँ पे बीच में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर गैसेस से बना है. तो ये जो गैसेस है ये इस रेडिएशन को इट लेट्स इट पास थ्रू एंड कुछ आपका हीट जो है इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैप हो जाती है.
ये एक नेचुरल फिनोमिना है, अगर ये नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. सो वी कैन नॉट से कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा है. बट जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तब से क्या हुआ कि कोल का यूसेज, स्टीम इंजन, इन सब में फॉसिल फ्यूल्स यूज होते थे. ड्यू टू विच हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा यूज किया, स्पेसिफिकली कोल का. एज अ रिजल्ट लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट काफी ज्यादा चेंज हो गया, स्पेसिफिकली टेम्परेचर का राइज बहुत ज्यादा हो गया, एंड जो हमारे रेनफॉल के पैटर्न्स है वो बहुत ज्यादा इराटिक हो गए. ये एक कारण है. ठीक है, विच आर द ग्रीन हाउस गैसेस? प्राइमरली हम 3 गैसेस की बात करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, द मोस्ट ऑफन टॉक्ड अबाउट गैस. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फॉसिल फ्यूल से एमिट होती है, तो ये एक चीज है. ठीक है, देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट मिथेन. मिथेन से यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गार्बेज की लैंडफिल्स होती है ना, जो हमारी सिटी का गार्बेज है वो अक्सर एक जगह पे इकट्ठा करके डंप कर दिया जाता है. थोड़े थोड़े टाइम के बाद इट एक्चुअली फॉर्म्स इनटू अ लैंडफिल. इस लैंडफिल से जो गैसेस एमिट होती हैं उनमें मिथेन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है. सिमिलरली एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से भी मिथेन एमिट होती है, तो वो भी एक कारण है. देन भी इवन जो वाटर वेपर है, जो हमारा नॉर्मल वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होता है, इवन दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस. वी ऑल्सो हैव नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, फर्टिलाइजर्स के यूज से, वो भी एक आपका ग्रीन हाउस गैस है. तो पहला हमारा जो इफेक्ट है वो है कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ. और ये ग्रीन हाउस गैसेस कहां से आई? बाय द यूज ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. सेकेंड, लैंड यूज चेंज. जैसे जैसे सोसाइटी ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग से वी शिफ्ट टुवर्ड्स अग्रेरियन सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, तो हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया. जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो नेचुरली वी हैड टू कट डाउन फॉरेस्ट, हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ी. अब जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनके लिए इनटेक क्या है? जैसे वी ब्रीथ ऑक्सीजन, फॉरेस्ट या ट्रीज दे एक्चुअली कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अपना खाना बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं. यानी कि हमारे फॉरेस्ट क्या है? कार्बन सिंक्स हैं, कि इनमें कार्बन अब्सॉर्ब हो जाता है. क्यों? क्योंकि इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है टू डू देयर फोटोसिंथेसिस. अब जब हमने लैंड यूज चेंज किया, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किया, अर्बन एरियाज को सेटअप करने के लिए किया, या इवन एग्रीकल्चर के लिए भी किया, इस सब से हुआ क्या कि जो हमारा नेचुरल फॉरेस्ट कवर है वो डिक्लाइन हो गया. तो दिस इज अगेन अ वेरी बिग कॉज फॉर क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इम्पैक्ट भी क्लाइमेट चेंज के मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं. वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स. पहला है अर्बन हीट आइलैंड. यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म इन न्यूज़पेपर्स एज वेल. अर्बन हीट आइलैंड क्या है? जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ, हमने सड़कें बनाना स्टार्ट की. ठीक है, और जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वो जनरली सीमेंटेड होंगे, कच्चे एरियाज तो नहीं होंगे, दे आर यूजुअली सीमेंटेड एरियाज. वी हैव कंक्रीट देयर. ठीक है, इसकी वजह से अब होता क्या है, दिन के टाइम में वी हैव द सनलाइट, राइट? तो हमारा जो जितनी भी हीट है वो अब्सॉर्ब हो जाती है. अब रात के टाइम पे ये हीट प्रॉपरली आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, आपके कंक्रीट इतनी ज्यादा होने की वजह से, एंड क्योंकि सारे एरिया सीमेंटेड हैं, अर्बन एरियाज का टेम्परेचर रात के टाइम में रूरल एरिया से ज्यादा देखा गया है. प्लस इवन नाइट टाइम लाइटिंग का भी यूज होता है. दिस इज ऑल व्हाट हैज कॉज्ड अर्बन हीट आइलैंड, कि अर्बन एरियाज का टेम्परेचर रात के टाइम पे रूरल एरिया से ज्यादा है. दिस इज वन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. दूसरा, ओशन एसिडिफिकेशन. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, तो जो हमारे ओशंस है नेचुरली इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक इंक्रीज होगा. जब कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जो वाटर है H2O, जब ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ये क्या बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड. जैसे जैसे ओशंस में कार्बोनिक एसिड इंक्रीज होगा, तो हाँ, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कि ओशंस की एसिडिफिकेशन हो रही है. ड्यू टू दिस ओशन एसिडिफिकेशन देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, या आप कह लो खास करके जो शेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके ऊपर शेल होता है, कैल्शियम का सेल होता है, वो इस एसिडिफाइड कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाते. तो आपकी जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको भी बहुत ज्यादा खतरा है. कैसे? ड्यू टू ओशन एसिडिफिकेशन. नेक्स्ट है कोरल ब्लीचिंग. व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग?
इसके लिए पहले हम कोरल को समझ लेते हैं, तभी कोरल ब्लीचिंग समझ लगेगा। Corals are certain organisms in our marine environment which secrete calcium carbonate. ये क्या secrete करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस कैल्शियम कार्बोनेट हार्डन्स। ये हार्डन होके ना एक शेल टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं कोरल रीफ। ये रीफ मरीन एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। व्हाई? बिकॉज इस रीफ में अब जगह मिल जाएगी मरीन फिशेस, मरीन ऑर्गेनिजम्स को सॉर्ट ऑफ एक घर मिल जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं एक एल्गी के साथ, ठीक है। कोरल रीफ्स जो है, जो हार्डन्ड कैल्शियम कार्बोनेट है, वो एल्गी के साथ एक रिलेशन फॉर्म करते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद है। एनवायरमेंट में ऐसा रिलेशन जो दोनों चीजों के लिए, दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद हो, इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशन। कि जी इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है, ये रिलेशन रख के इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। दिस इज नोन एज सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है, कोरल इसको रहने की जगह देता है, ठीक है। अब वेन एवर आसपास के एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जाम्पल पानी में सैलिनिटी बढ़ गई, या फिर पानी में सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, या फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा कोई भी अगर चेंज आएगा तो कोरल्स क्या करेंगे? एल्गी को अपनी रीफ से एक्सपेल कर देंगे। अगर आप कोरल रीफ्स को गूगल इमेजेस पे जाके देखोगे, दे आर वेरी कलरफुल। अब कोरल्स अपने आप में कलरफुल नहीं है, क्योंकि कोरल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लेन सिंपल वाइट, ठीक है। तो लेकिन इसमें एल्गी की प्रेजेंस है, जिसकी वजह से इनमें कलर आता है। अब जब ये कोरल रीफ्स एल्गी को एक्सपेल कर देंगे, क्यों एक्सपेल किया? टेम्परेचर बढ़ गया, सैलिनिटी बढ़ गई, या उस एरिया में सेडिमेंट्स काफी ज्यादा आ गए, है ना। तो इस वजह से ये एल्गी को एक्सपेल कर देंगे, ड्यू टू विच इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कि ब्लीच हो गया, कलर अब दिख ही नहीं रहा। कलर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि एल्गी इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत पावरफुल इंपैक्ट है। हीट वेव्स, नॉट एवरीवन इज देयर वर्किंग इन अंडर द एसीज, राइट। देयर आर लॉट ऑफ वर्कर्स जो आपकी धूप में काम कर रहे हैं, आउटसाइड काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। सो जैसे जैसे हीट वेव्स बढ़ती जा रही हैं कंट्री में एंड इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, काफी हीट स्ट्रेस के कारण डेथ होती है, ठीक है। पीपल फेंट एंड डाई। तो काफी आपके स्ट्रोक से कारण काफी ज्यादा डेथ होती है, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस रिलेटेड डेथ्स, ठीक है। तो ये एक कारण है। एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर हमारी क्लाइमेट चेंज से जो सबसे थ्रेटेंड चीज है, दैट इज आवर फूड सिक्योरिटी। कि हम कल को खाना कैसे खाएंगे और क्या हमें इनफ, क्या इसमें कोई चेंजेस आएंगे? सी, अगर आप देखोगे अर्थ में ऐसा बोला जाता है, दिस इज इक्वेटर, राइट। सो ऐसा बोला जाता है जैसे जैसे वार्मिंग होगी तो कुछ क्रॉप्स जो काफी क्लाइमेट सेंसिटिव है, काफी टेम्परेचर सेंसिटिव है, फॉर एग्जाम्पल वीट ना सर्दियों में उगाई जाती है, इट्स अ रबी क्रॉप, तो ये काफी टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप रहती है। अगर ये इस एरिया में ग्रो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से ये एरिया और ज्यादा वार्म हो जाएगा, तो वीट के लिए तो यहाँ पे सर्दियों में ग्रो होना भी मुश्किल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं, जो हमारे अर्थ के नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, वहां पे एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। वहां का क्लाइमेट तब वीट को सूट करेगा। यहाँ वाला क्लाइमेट तो सर्दियों में भी वीट को सूट नहीं करेगा, क्योंकि सर्दियों में भी यहाँ के टेम्परेचर इतने ज्यादा होंगे कि वीट विल बी सेंसिटिव टू इट, ठीक है। सो ये जो हमारे एग्रीकल्चर का कई जगह पे डिक्लाइन, कई जगह पे राइज विल हैपन। एट द सेम टाइम इट इज नॉट जस्ट दैट कि कहीं पे एग्रीकल्चर डिक्लाइन होगा, इवन हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी डिक्लाइन होगी। ग्रेन्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ग्रेन का साइज कैसा है, क्या ग्रेन प्रॉपर अपने साइज तक पहुंच पा रहा है, ये सब भी आपके क्लाइमेट चेंज से डिटरमाइन होगा। इनफैक्ट इट इज सेड दैट ओवरऑल राइस के जो यील्ड्स हैं दैट विल गो डाउन बाय 6%, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। देन क्लाइमेट रिफ्यूजीज, हमारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं पैसिफिक ओशन में, है ना, इवन इंडियन ओशन में अगर आप देखोगे मालदीव्स है, सो ये सब कंट्रीज देयर इज अ चांस ऑफ सबमर्जेंस। बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ सबमर्जेंस, देयर इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू देयर सर्वाइवल। इनको दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ेगा, जिससे दे विल बी नोन एज
क्लाइमेट रेफ्यूजीज। इससे पॉलिटिकल क्लैशेस भी होंगे, कल्चरल क्लैशेस भी होंगे, सिटीजनशिप के इश्यूज भी उठेंगे, ठीक है। वाइल्ड फायर्स, probably you had heard a few years back we had a severe wildfire in the continent of Australia. जब ये wildfire ऑस्ट्रेलिया में फैली तो वहाँ की जो नेटिव एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कंगारूज हैं एंड इवन आपके कोला बियर्स हैं, दे ऑल बेसिकली जस्ट गॉट जार्ड, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं तो फॉरेस्ट का फायर कैच करना की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इंडिया में उत्तराखंड एक प्राइम एग्जांपल है इस चीज का, ठीक है। कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर्स काफी न्यूज में रही थी, कैलिफोर्निया यूएसए में है। देन आ जाता है आर्टिक ओशन। हम बात करते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है हमारा जो आइस कैप्स है, चाहे वो नॉर्थन साइड पे नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे सी लेवल राइज होगा। अब देखो, जस्ट लुक एट दिस मैप, ये हमारा यहाँ पे इंडिया है, चाइना, देन वी हैव रशिया ऑन दिस साइड, ठीक है, एशिया का ईस्टर्न साइड है। ये रशिया का बिल्कुल फार ईस्ट आगे जाके किससे मिलेगा? पैसिफिक क्रॉस करके आपका इससे यूएसए से, राइट। यहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये आर्टिक ओशन का रीजन है और ये पूरा आपका यूरोप वाली कंट्रीज आ गई। आज के टाइम पे अगर हमें ट्रैवल करना हो तो रूट क्या है कि हम रशिया के फार ईस्ट से स्टार्ट होंगे, इंडिया के साउथ से होते होते, सुएज कनाल से होते हुए, एंड देन हम जाके सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचेंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे आपकी आर्टिक आइस मेल्ट होगी तो देयर इज अ न्यू सी रूट विच विल ओपन अप बाय द नेम ऑफ नदन सी रूट, क्योंकि पानी होगा अब इस एरिया में रादर देन आइस। नदन सी रूट के नुकसान क्या है? नंबर 1, एवरी कंट्री विल क्लेम कि जी ये तो मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब हमने थोड़े दिन पहले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में पढ़ा था। ये बोलेंगे कि इस एरिया में जो भी रिसोर्सेज हैं उस पे मेरा कंट्रोल है। तो यहाँ पे एक डिमार्केशन प्रॉपर नहीं है तो डिफिकल्टी आएगी। काफी कंट्री पास में है, उनके ईईजेड ओवरलैप होंगे। दूसरा, जब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा, ऑयल स्पिल्स, इनका भी खतरा बढ़ेगा, ठीक है, जिससे इस एनवायरनमेंट की इकोलॉजी, यहाँ के जो लोकल आपके एनिमल्स, फ्लोरा फौना है, उसको भी खतरा होगा। फाइनली एक और एग्जांपल, अ फ्यू इयर्स अगो जो कश्मीर में देयर इज अ पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन है ना, गुलमर्ग, तो वहां पे स्नो ही नहीं थी। अब अगर स्नो नहीं थी तो वहां पे स्कीइंग नहीं होगी, अगर स्कीइंग नहीं होगी तो लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान होगा। सो दीज आर सर्टेन आपकी इम्पैक्ट्स जो अक्सर न्यूज में आपको सुनने को मिलेंगे। अब अगर हम फॉरेस्ट फायर्स की बात करें, देयर इज वन प्राइमरी कॉज जो फॉरेस्ट फायर्स को कॉज करता है उत्तराखंड वाले एरिया में। देयर इज अ ट्री बाय द नेम ऑफ चिर पाइन। ये जो चिर पाइन की ट्रीज हैं, इनकी ना ऐसे नीडल टाइप लीव्स होती हैं, बिल्कुल तीखी लीव्स होती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी जमीन पे गिर जाती है और लिटर जो है वो साफ नहीं होता है, रेगुलर साफ नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन के कारण कभी कभार दे टेंड टू कैच फायर। तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर केम अप विद दिस आइडिया कि ये जो हमारा एमजी नरेगा स्कीम है उससे ये लिटर क्लियर करवाया जाए टाइम टू टाइम, सो दैट उत्तराखंड जैसी स्टेट्स में फॉरेस्ट फायर्स कम हो। अब बात करते हैं ग्लोबल एफर्ट्स की। वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द causes of climate change, what is climate change, and we have talked about what can be the possible impacts. Now we will talk about कि आपके ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। फर्स्ट इज ब्राजील, एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। ब्राजील में एक शहर है रियो दी जनेरियो। रियो दी जनेरियो शहर में 1992 में एक बहुत बड़ी क्लाइमेट की समिट हुई थी बाय द नेम ऑफ रियो अर्थ समिट। ये जो समिट थी, इसमें पहली बार प्रॉपर तरीके से क्लाइमेट को डिस्कस किया गया। इसके 3 आउटपुट्स निकले। सबसे पहले एक कन्वेंशन साइन की गई कि हम डेजर्टिफिकेशन यानी कि बढ़ते हुए इनफर्टाइल एरिया को कॉम्बैट करें, उसको रोके, नंबर 1। सेकेंड, जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, चाहे वो फ्लोरा है या एनिमल्स हैं, इनकी प्रॉपर प्रेजर्वेशन हो, कंजर्वेशन हो, इसके लिए एक कन्वेंशन साइन हुई। थर्ड, UNFCCC, व्हाट इज दिस? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन साइन हुई है, इसकी एवरी ईयर देयर इज अ मीटिंग दैट टेक्स प्लेस। दिस मीटिंग इज नोन बाय द नेम ऑफ कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये यूजुअली दिसंबर में होती है एंड आपको हर साल ये कोई ना कोई अपडेट मिलेगी इसके रिगार्डिंग कि आज
COP13 हो रही है, आज COP15 हो रही है, आज COP30 हो रही है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि ये कब स्टार्ट हुई थी, एवरी ईयर वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर. तो पहली जो हमारी समिट थी उसमें ये निकला कि हमने डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश की, एंड ये जो हमारी एनुअल मीटिंग्स हैं इनको स्टार्ट किया. वी डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ द मीटिंग्स, कुछ पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है. जो कॉप की थर्ड मीटिंग थी वो जापान के एक शहर में हुई बाय द नेम ऑफ क्योटो. जापान में एक शहर है जिसका नाम है क्योटो. इस मीटिंग में देयर वाज अ प्रोटोकॉल व्हिच वाज साइंड बाय द नेम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल. दिस वाज इन 1997. ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इट केम अप विद दिस आइडिया, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, CBDR. CBDR क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. CBDR इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि हिस्टोरिकली तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से वेस्टर्न कंट्रीज ने आपके फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा यूज किया है. यानी कि आज जो हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं या टेम्परेचर में इंक्रीज देख रहे हैं वो प्राइमरीली वेस्टर्न कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन की वजह से है. तो अगर हम सब पे सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे क्लाइमेट चेंज की, दैट विल अमाउंट टू अ हिस्टोरिकल इनजस्टिस. इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, इट इज अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एनवायरमेंट, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड है. किसी की ज्यादा है, किसी की कम है. वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है बिकॉज दे वर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एमिशंस. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, चाइना की, इंडिया की, ब्राजील की, क्योंकि हम तो तब तक इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं हुए थे. हमें तो अब स्पेस चाहिए इंडस्ट्रियलाइज होने की. ठीक है, सो इस चीज की बात की गई. CBDR प्लस कई कंट्रीज पे लीगली बाइंडिंग टारगेट्स लगाए गए कि आपने इस टाइम तक एमिशंस को इतना इतना कंट्रोल करना है. 2015 became an extremely important year. 2015 was the year where COP15 took place in this city of Paris. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक टारगेट रखा गया कि 1950 क्यों चूज किया, क्योंकि इस टाइम पे ना एमिशंस इतनी ज्यादा स्टार्ट नहीं हुई थी. तो यहाँ वाली एमिशंस को बेसलाइन रखते हुए आज की एमिशन कंट्रोल करो और यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से 2 डिग्री सेल्सियस राइस हमने प्रिवेंट करना है. इससे ज्यादा राइस हम टेम्परेचर में अलाउ नहीं कर सकते. किससे कंपेयर कर रहे हैं? 1950 के लेवल से. ठीक है, तो 2.2 डिग्री सेल्सियस हमने, इससे ज्यादा हम टेम्परेचर को राइज होने नहीं दे सकते. अदरवाइज अगर इसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट, अगर 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा राइज हो गया, we will have to face consequences which cannot be reversed. हम ऐसे consequences देखेंगे जो अर्थ की सर्वाइवल के लिए खतरनाक होंगे and they cannot be reversed. It's a tipping point. ठीक है, अगला इशू जो क्लाइमेट में रहता है वो 2 चीजों का इशू है, फंडिंग का एंड टेक्नोलॉजी का. हमने इन कन्वेंशंस में डिसाइड किया था कि एवरी ईयर डेवलप्ड कंट्रीज विल कंट्रीब्यूट $100 बिलियन. क्यों? ताकि आपके नए प्रोजेक्ट्स लग सकें, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर रिसर्च हो सके, अगर उनके लिए कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी चाहिए, किसी प्रकार के मिनरल की एक्सट्रैक्शन चाहिए, वो सब हो सके. तो डेवलप्ड कंट्रीज के पास तो रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी भी है, सो दे विल एक्चुअली हेल्प आउट अदर कंट्रीज. ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पे हुई वो है कार्बन ट्रेडिंग. कार्बन ट्रेडिंग क्या है, इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये है कंट्री 1, ये है कंट्री 2. दोनों के पास परमिशन है कि अपर लिमिट है कि आप सिर्फ 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड ही एमिट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इस कंट्री ने कर दी 70 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट और इसने सिर्फ 30 टन की. तो इसने तो लिमिट को ब्रीच कर दिया, जबकि इसने तो इतनी ज्यादा एमिशन नहीं की. Now what they can do is they can trade. What can they trade? They can trade carbon certificates. इसको हम बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जिसमें क्या होगा, ये कंट्री सेल करेगी, ठीक है, ये कंट्री बाय, क्योंकि इसने ज्यादा अपना एमिशंस किए हैं, सो इट विल हैव टू कॉम्पेंसेट बाय बाइंग कार्बन क्रेडिट्स. ठीक है, और ये कंट्री सेल करेगी, इट विल एक्चुअली गेट पेड फॉर इट. तो ये आपका कार्बन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म है. देन एज पर दिस आर्टिकल, ये जो हमारे न्यूज़पेपर में आज का आर्टिकल था, उसके अकॉर्डिंग
इंडिया 9th मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है। हमारी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इस बात से भी बढ़ जाती है, नंबर 1 वी आर सराउंडेड बाय इंडियन ओशन, तो अगर ओशन लेवल राइज होगा तो इंडिया की कोस्टल स्टेट्स को बहुत ज्यादा खतरा है। ऑन द अपर हैंड वी हैव, ऑन द नॉर्दर्न साइड वी हैव हिमालयस, राइट, सो आइस मेल्ट होगा तो हमारी रिवर्स के फ्लड होने का भी खतरा है। तो इंडिया इज द 9th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। देन क्लाइमेट चेंज की डिबेट में आप दो चीजें सुनोगे, एक है मिटिगेशन, एक है अडेप्टेशन। मिटिगेशन क्या है कि क्लाइमेट चेंज हुआ नहीं, यू विल टेक मेजर्स राइट नाउ टू स्टॉप कि क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकें। कैसे मेजर्स लोगे? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो ताकि ट्रांसपोर्टेशन से फॉसिल फ्यूल्स कम बर्न हो, पेट्रोल कम बर्न हो। देन आप जो है इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज कट डाउन करो। ये सब मेजर्स जो हम पहले लेते हैं दे आर नोन एज मिटिगेशन। अडेप्टेशन क्या है? क्लाइमेट चेंज हैज हैपेंड, नाउ हाउ विल यू अडेप्ट टू इट। तो हमारा जो क्लाइमेट का फाइनेंस है या जो कंट्रीज के बजट्स हैं वो मोर और लेस मिटिगेशन की तरफ ज्यादा है, अडेप्टेशन की तरफ कम है। सो दिस इज अनदर इशू। देन एक इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई कंट्री अडेप्टेशन में इन्वेस्ट करती है दैट विल अमाउंट टू 10-fold रिटर्न, उसको उसका 10 गुना वापस बेनिफिट मिलेगा अडेप्टेशन में अगर लगाती है तो, ठीक है। बट कंट्रीज क्या कर रही है? मिटिगेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करती है कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कम कर लें एक्सेट्रा। जो COP30 हुई थी इसमें बात की गई लोकली लेड अडेप्टेशन की, कि कम्युनिटी को एनकरेज करो कि वो अडेप्टेशन फॉलो करे। कैसे? कम्युनिटी कैन कम अप विद लोकल पॉन्ड्स कि जिससे पानी प्रिजर्व रहे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर बिल्डिंग में कंपल्सरी हो सिटीज में, ठीक है। तो लोकल लेवल पे जब हम ये एनकरेज करेंगे तब अडेप्टेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगी। हमारी जो क्रॉप्स हैं वो ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स हो, जैसे कि मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रादर देन ट्रेडिशनल राइस एंड व्हीट। देन एक और इस आर्टिकल में जो एग्जांपल दिया गया था विच कैन बी यूज्ड इन योर एग्जाम एज वेल, तमिलनाडु हैज दिस आइडिया ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस। कुछ ऐसे विलेजेस तमिलनाडु में जिन्होंने लोकल लेवल पे आपका मेजर्स लिए कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से उन विलेजेस को एनवायरमेंटली रेजिलिएंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आप अपने एग्जांपल्स में मेंशन कर सकते हो। देन ये एक छोटी सी न्यूज थी अगेन रिलेटेड टू आपका क्लाइमेट चेंज, दिस वाज इन टुडेज एक्सप्रेस। एक्सट्रीम इवेंट्स could impact 36% of land animal habitats by 2085। ये बोल रहे हैं 2085 तक 36% एनिमल के जो हैबिटेट्स हैं वो इंपैक्ट होंगे। किससे इंपैक्ट होंगे? एक्सट्रीम इवेंट से। एक्सट्रीम इवेंट्स कुड बी हीट वेव्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली हीट वेव्स का मेंशन किया गया है कि अगर हीट वेव्स होंगे तो एनिमल्स विल हैव टू लीव देयर हैबिटेट्स, उनको किसी और जगह की खोज करनी पड़ेगी। इंसेक्ट्स हैं उनको, बर्ड्स को किसी और एरिया की खोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है एनिमल के हैबिटेट्स को। देन ये भी आज की एक्सप्रेस में था, अ टाइनी आर्कटिक विलेज इन अलास्का इज ट्राइंग टू रिवाइव इट्स पोलर बियर टूरिज्म इंडस्ट्री। सो व्हाट इज हैपनिंग? आर्टिक में एक एनिमल जो अक्सर क्लाइमेट चेंज की फोटोग्राफ्स में भी लगता है, दैट इज योर पोलर बियर, राइट। सो पोलर बियर आपका एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। तो आर्टिक में कुछ ऐसे विलेजेस हैं विच हैव स्टार्टेड टू कम अप विद दिस आइडिया ऑफ लास्ट चांस टूरिज्म, कि आपको अगर पोलर बियर को लास्ट चांस भाई देखना है बिकॉज दिस विल सून बिकम एक्सटिंक्ट, तो यू कैन कम एंड सी इट, ठीक है। तो ये भी आप कहीं ना कहीं पे यूज कर सकते हो। देन 3 pathways फॉर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ये एक आर्टिकल था आई थिंक, हाँ ये भी एक्सप्रेस में ही है। इन्होंने बोला है कि अगर हमें एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना है तो हम 3 चीजों को फॉलो कर सकते हैं। विच आर दीज 3? नंबर 1, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट है, चाहे कुकिंग इंडस्ट्री है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ज्यादा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग में वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रिकल स्टव्स एज कंपेयर टू योर अर्दन, आपका जो नॉर्मल हर्थ पे कुकिंग होती है। देन ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये सब क्यों प्रमोट किया जा रहा है? सो दैट हमारी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, there is a geographical advantage with certain countries with regard to rare earth minerals। ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इनके जो पार्ट्स हैं उनको बनाने के लिए, बैटरीज हो गई, मैग्नेट्स हो गए, उनको बनाने के लिए सर्टन मिनरल्स यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। वाई आर दे नोन एज रेयर अर्थ? बिकॉज इनकी कंसेंट्रेशन कई कई कंट्रीज में ही है, ठीक है। तो रेयर अर्थ में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है चाइना।
In China, there is a region known as Inner Mongolia, extremely important for rare earth. तो क्योंकि चाइना में इतनी कंसंट्रेशन है, देयरफॉर अगर कंट्रीज को अपने कंट्री में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इंक्रीज करना है, वी विल हैव टू सोर्स दीज आपका रेयर अर्थ मिनरल्स फ्रॉम चाइना. तो हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी. इंडिया ऑल्सो हैव दीज रिजर्व्स. फॉर एग्जाम्पल साउथ की स्टेट्स में ना वी हैव मोनाजाइट सैंड्स. These monazite sands are very rich in rare earth minerals. लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम ये है, we are able to extract the minerals, but अभी भी हमारे पास रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है एंड सेपरेशन की इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है. जब तक रिफाइन नहीं कर पाओगे आप, जब तक और ही रहेगा, उसको रिफाइन करके आप बाकी नहीं निकाल पाओगे आपका डस्ट एंड ऑल, सो इसमें आपका रेयर अर्थ मिनरल्स प्रॉपरली यूज नहीं हो पाएंगे. सेकेंड, हम कैसे एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट यूजिंग एग्रीकल्चर रेजिड्यू. कि हमारा जो फॉरेस्ट का रेजिड्यू है, हमारा जो एग्रीकल्चर का रेजिड्यू है, स्टबल है, मेन्योर है, म्यूनिसिपैलिटी का सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है, इन सबको यूज करके क्या करो, आप क्या करो, बायोचार बनाओ. बायोचार है सॉर्ट ऑफ, बायोचार एक मिट्टी की तरह होता है आपका टेक्सचर में. इट इज प्राइमरली यूज टू इंक्रीज सॉइल की फर्टिलिटी. ये बायोचार कैसे बनता है? वेस्ट प्रोडक्ट से, एग्रीकल्चर रेजिड्यू से, इनको बर्न करके जो रेजिड्यू बचता है दैट इज नोन एज बायोचार. दैट कैन बी यूज्ड इन द फ्यू आपका एग्रीकल्चर फील्ड्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. देन जो फॉरेस्ट का रेजिड्यू है ना, जो फॉरेस्ट में आपका नीचे रेजिड्यू पड़ा है, उससे आप क्या कर सकते हो, ब्रिकेट्स बना सकते हो. व्हाट आर ब्रिकेट्स? ये ब्रिकेट्स हैं. इस तरह के ना आपने रोल्स बना दिए फॉरेस्ट की जो हमारी रेजिड्यू है. वन, इसको जब हम बर्न करते हैं इट डजंट एमिट स्मोक, स्मोक नहीं एमिट होती है. दूसरा, इनकी बर्निंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो ये लंबे टाइम तक भी बर्न होते हैं. तो ब्रिकेट्स एक मेथड है जिससे हम फॉरेस्ट के रेजिड्यू को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. लास्ट, इंडिया में पेट्रोलियम की बजाय आप नेचुरल गैस का शेयर इंक्रीज करो. सो गवर्नमेंट हैज दिस टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग नेचुरल गैस शेयर from current 6% to 15% by 2030. Why? Because natural gas is a relatively cleaner source as compared to petrol and diesel. So these are certain areas whereby we can diversify our dependence on energy resources. Then we are up for today's time, है ना. तो हम जो बाकी का है we'll cover it tomorrow. If there is some short news then we can go for it. हाँ जी, देयर इज दिस AI की न्यूज़ है बट इट विल टेक टाइम, है ना. सो विल डू इट टुमारो. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच.